After Prime Minister Narendra Modi has slammed the opposition and Congress over the criticism on the Agnipath scheme, Congress leader Karti Chidambaram has reacted, criticizing the Prime Minister Narendra Modi for defending the Agnipath scheme at an event to honor the Kargil war heroes. He said that the army should not be politicized. He also added that the Agniveer scheme should be scrapped and it does not solve the needs of the army. This comment comes in the response to PM's jibe at the opposition. During his address at the Kargil Divas from the stage, Prime Minister Narendra Modi said that the opposition is trying to spread lies about the Agnipath scheme to ensure that the youth do not sign up for the short-term recruitment in the armed forces, furthering his jibe at the opposition, alleging that these are the same people who have weakened the Indian army and the defense sector by committing scams worth thousands of crores and not providing bulletproof jackets to the soldiers on the border. Besides Karti Chidambaram, several other opposition leaders have also criticized, reacting to the PM's comment, both from the opposition and the BJP. Now let's listen in fact, the reactions that are coming in on the PM's criticism against the opposition on the Agniveer scheme. Power and modernized the army, but some people are doing politics. No, the Agnipath scheme is a short-term induction into the armed forces without the necessary training and the benefits. A professional army going forward needs comprehensive training and a full commission. So the Agnipath scheme in no way strengthens the capacity and the capabilities of the armed forces, because as modern warfare will become more technologically oriented, you can't have these short-term outsourced model of recruiting people. The PM said that it's a decision taken by the armed forces. Now, I retired 12 years back, and all this has happened post my retirement. And I believe in a very firm principle that I did my bit when I was serving. Now is a chance for our youth who are taking over those reins from us to serve the country the day we did. And we have to have confidence in them. And I believe the younger generations always outwit the older ones. They do better. मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारे सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और दुनिया के लोग हमारे वीरों को हमारी सेना का लोहा मानते हैं। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अग्निवीर की जो व्यवस्था की है, जिसमें है कि 4 साल के लिए सेना में रहेगा, उसके बाद घर पे जाकर क्या करेगा, पकौड़ा बेचेगा। इससे ज्यादा अपमान सेना का नहीं हो सकता है। और जब इंडिया पार्टी की सरकार आएगी, 24 घंटे के अंदर इस व्यवस्था को खत्म करके रेगुलर भर्ती करेंगे और सेना का सम्मान बढ़ाएंगे। यही देखिए, यही सत्य आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही है, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है, जहां पर आज बच्चे सेवा करने, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। जैसे इजराइल की फोर्स है, हर बच्चा वहां पे, या चाइना की फोर्स है, हर बच्चा देश आर्मी के लिए ट्रेंड रहता है, एक आर्म्स को चलाने की ताकत रखता है और आर्म्स की कभी भी देश पे कभी विपत्ति आए तो आर्म्स उठा सके। ये वो सोच के साथ देश को मजबूत करना है। हेल्थ वाइज, शरीर वाइज, स्वास्थ्य वाइज आप फिटनेस रखते हैं, आप यंग रहते हैं, आप पॉजिटिविटी के साथ, आप ड्रग्स और शराब में नहीं पड़ते, एक बच्चों को नई दिशा मिलती है। विपक्ष इस तरह से मनोबल जो तोड़ रहा है, एक खोखला है। देखिए, 5 साल इनकी यही एक राजनीति है जो मैं पूरे दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार जो भी कुछ करे सिर्फ विरोध करना है। विरोध ही इनका लक्ष्य है, विरोध के लिए ये लोग अपोजिशन में आए। और इनकी जो मुझे तो तकलीफ हो रही है, जिन्होंने वोट दिया इनको किसी उम्मीद से, उन पर कितनी पीड़ा हो रही है कि हर बात को लेकर एक नकारात्मक सोच के साथ ये लोग कैसे देश को आगे ले जा रहे हैं, कैसे देश को बढ़ाएंगे, कैसे अपोजिशन में काम करेंगे। Well, the war of word continues to unfold as far as the politics on the Kargil Vijay Divas over the Agnipath scheme is concerned. Joining me at this moment is BJP spokesperson Avdesh Upadhyay. Avdesh ji, ऑपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अग्निपथ स्कीम को लेकर कहना है कि ये स्कीम का कोई फायदा नहीं है और सिर्फ देश का जो युवा है
उसका समय बर्बाद करने की एक स्कीम है और प्राइम मिनिस्टर को इस समय सिर्फ सोल्जर्स, सिर्फ इंडियन आर्मी के बढ़ोतरी की बात करनी चाहिए, उनके हौसले को और बढ़ावा देना चाहिए, ना कि इस स्टेज पे जाकर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। जो आज कारगिल वॉर मेमोरियल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पीच दिया, उसके ऊपर सीधा सीधा बयान है कांग्रेस का। जय हिंद, जय भारत। और भारतीय सशस्त्र बलों के जो अदम्य साहस और शौर्य का जो प्रतीक है कारगिल विजय दिवस, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, रही बात विपक्ष की, मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था, शायद आपके चैनल में जुड़ा था, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल वो देश की जनता को राजनीतिक रूप से गुमराह करने का काम करते हैं। आज देखिए, कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि सेना के मतलब साहस का जो दिन है, सेना को आप मोटिवेट करने का दिन है, और आप यहाँ पे आज भी राजनीति कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कितना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि ऐसा विपक्ष हमारे पास है जो देश की सेना के लिए भी नहीं छोड़ता। अरे भाई, आप विपक्ष हैं, आप बात कीजिए, यदि कोई सत्ता पक्ष कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है आप उसका विरोध कीजिए, आपके साथ देश की जनता रहेगी। लेकिन आप तो ऐसे काम का भी विरोध करते हैं, ऐसी चीज का भी विरोध करते हैं जो देश हित का होता है। कोई कानून अगर देश हित का आता है तो उसका विरोध किया जाता है। कोई यदि नीति ऐसी लाई जाती है जिससे देश हमारा प्रगति करे, विकसित देश बने, उसका विरोध किया जाता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आज के समय में कोई मुद्दा नहीं है। वो केवल देश की जनता को गुमराह करके, राजनीतिक तरह से गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेक रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है देश के लिए। Hear you, BJP's Avdesh with us on the broadcast. Joining me at this moment is also Congress's spokesperson Anshu. What is the comment that's coming from the Congress's side as far as the response by the BJP on how Congress has reacted to Prime Minister Narendra Modi's comments that have come on Agniveer and Agnipath scheme that have actually come on the 25th Kargil Vijay Divas celebrations. Now, I believe the Congress has maintained a stand of criticizing the Agnipath scheme, but BJP is saying that this indeed is going to bring down the morale of all the youth in the country and aspiring soldiers. Instead of motivating them to join the forces and to be a part of the prestigious contingent of the forces, Congress is only trying to break their confidence. देखिए, सबसे पहले तो हम अपने वीर सैनिकों जो शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं और उनके परिवारों को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतने साहसी और अदम्य साहस रखने वाले बेटे पैदा किए, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। दूसरा, अग्निवीर की बात है। कांग्रेस पार्टी पर एलिगेशन हो रहा है कि देश के युवाओं को हम मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे आप बताइए, क्या इस देश के युवा अग्निवीर योजना पर काम करने को तैयार हैं? अगर तैयार होते तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो 315 के लगभग थीं, वो घटकर 240 नहीं आती। आज भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत की सरकार है जो कभी भी लुढ़क सकती। दूसरा, इस देश के युवा के साथ आप धोखा कर रहे हैं। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अब तो आप उनको वो नौकरियां भी छीन ले रहे हैं जो पहले से हैं, जिसमें स्थायित्व था। आप तो उन नौकरियों को छीन रहे हैं। और दूसरा, 22 साल का नौजवान रिटायर करके घर भेजा जाएगा और 73 साल के जो बुजुर्ग हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको मौका चाहिए। कम से कम थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए। बीजेपी के नेता जो 70 साल के ऊपर नौकरियां मांग रहे हैं, अपने लिए पोजीशन मांग रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि वो 22 साल के नौजवान को रिटायर करने की बात कर रहे हैं? आप इस देश के सैनिक का अपमान कर रहे हैं, असली अपमान तो आप कर रहे हैं। Okay, all right. There we hear Congress's Anshu Awasthi responding to the allegations that have come from the BJP's Avdesh Upadhyay on mostly how the politics on the Agniveer scheme as far as the remarks that have come from the Kargil Vijay Divas by Prime Minister Narendra Modi on 25th anniversary of Kargil is concerned. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.